मेरे लिए फिल्म नहीं है, ये मेरे लिए एक एहसास है, एक ऐसा अनमोल एहसास जिसे मैं बचपन से पहाड़ में जी रही हूँ, जिस पर मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। और ये सिर्फ एक एहसास ही नहीं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि मुझे मौका मिला कि मैं आर्टिस्टिकली उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिल्म में सभी कलाकार उत्तराखंड से हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश विदेश में आज हमारे उत्तराखंड के कलाकार बुलंदियों पर हैं। पहाड़ों में कलाकारों की कमी नहीं है, लगे हुए हैं पहाड़ कलाकारों से, बस कमी है उस नीयत की, उन मौकों की और फराज शेरे जैसे प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के कलाकार द्वारा एक फिल्म बनाई जाए जो पलायन और महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर मुद्दों को इतनी सहजता से रखे। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, फराज शेर को। My name is Faraj Sher and I'm a small part of this beautiful film that we have made called Mati Pehchan. If I talk about this film, I've got a lot of memories. But before I share my memories with you, I really want to thank Shri Satpal Maharaj ji, Honorable Tourism and Cultural Minister, Government of Uttarakhand, for gracing this occasion, sir. Dr. Professor Kamal Ghansala ji, the founder president of Graphic Era Group of Institutions, respected journalists from various media houses, and the wonderful students who are present here. Trust me, I've already interacted with you before. First of all, I really want to thank the government of Uttarakhand. I'm not an Uttarakhandi. I'm the only person who's not Uttarakhandi. Otherwise, the director, the actors, the music director, the lyricist, everyone is from Uttarakhand. And trust me when I say that I didn't have any problem shooting this film from taking the permission, the location की permission होती है, उसकी permission लेने से सिंगल विंडो, इस स्टेट में शूट करने से, और आज के डेट में जब हमारी पूरी फिल्म खड़ी है सिनेमा हॉल में रिलीज होने के लिए सर, तब भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमें ये मालूम है आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, उसमें से आपने वक्त निकाला। सर आपने वक्त निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। As Ankita said, it's not a film. Trust me when I say that. When the script came to me, I'm the producer, so the script comes to me. So I had two options. The first option was that let's make a Hindi film or make a Bhojpuri film and you earn money. I'm a producer, it's a business. So if you invest 1 crore or maybe 2 crore, you get 4 crores. That's the absolute business. And the second part was that make a movie which has got issues, which has got some sense, which is not only about entertainment, which is not only about comedy, what people are facing. I owe everything, the entire film I'm saying, to Berry sir, the director of this movie. When he came to me and showed me the script, I categorically remember Berry sir, I told you, हिंदी में बनाते हैं सर, लेकिन आपने कहा नहीं, पहाड़ी भाषा में बनाएंगे. It was a tough decision for me, Ghansala sir, very tough decision. Because making a movie in a Uttarakhandi language was a very tough decision, sir. मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, business point of view से भी. There are very limited theatres in the state of Uttarakhand. In totality, it is only 43. Now, when you invest money in a regional language, and specifically I'm talking about the state of Uttarakhand, the returns are not there. It is not going to make money on the box office. So it was a tough decision. And for me, it was my maiden venture from Fortune Talkies motion picture.
My line was advertising, and before that I was into news. And from advertising I switched into filmmaking because I had that curiosity of making good films, responsible films. मैं बेरी सर ने जैसे बोला कि हम अपनी पहाड़ी भाषा में बनाएंगे, यकीन मानिए मैं दिल से ही बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। लेकिन इस शख्स ने जो बोला कि मैं 9 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं किस इंसान के पास नहीं गया कि पहाड़ी भाषा में फिल्म बने, यहाँ पे उद्योग हो, यहाँ के लोगों को लिया जाए, यहाँ के कलाकारों को लिया जाए। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स आती हैं सर आपके स्टेट में, सलमान खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, they come to this state because you have got beautiful locations, sir. They shoot the entire film, they take it back to Mumbai, they mint money, and what are we getting in return? This was the issue for me, which very soon made me realize, सर प्लीज कर दो हमारे लिए। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने जो उस समय डिसीजन लिया, I took the latter one. I never thought about the money, and I seriously don't know क्या ये फिल्म सक्सेस होगी, नहीं होगी, पैसा मैं कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा। I am seriously not bothered. The only thing I request with folded hands to any and every person in this auditorium, plus the media people, please हमारी फिल्म को जरूर देखिएगा और पहाड़ के उन तमाम लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए जिनके लिए फिल्म बनाई गई है। सर बहुत मेहनत की इन बच्चों ने, अंकिता परिहार, करण गोस्वामी, सब न्यू कमर्स हैं। बेरी सर की मेडन फिल्म है। इस फिल्म का संगीत राजन बजेली जी ने दिया है। दिल खुश कर देगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। कितनी कड़ी मेहनत के साथ ये फिल्म बनी है और फिर उसके बाद कोरोना आ जाता है, फिल्म होल्ड हो जाती है। लेकिन जो वादा मैंने पहाड़ के लोगों से किया था कि मैं इसका थिएट्रिकल रिलीज करूंगा, वो मैंने आज पूरा किया। आज ये फिल्म 23 सितंबर को उत्तराखंड के सभी सिनेमा घरों में हम रिलीज कर रहे हैं और आप लोगों से विनती करते हैं कि प्लीज इस फिल्म को किसी भी तरह से हर पहाड़ी तक पहुंचाइए, चाहे वो कुमाऊं का है, चाहे वो गढ़वाल का है। ये भी मुझे नहीं मालूम था कि रीजन डिवाइडेड है, सब मैंने पूछा भी था। I don't know, but this is an Uttarakhandi film for me, and this is one reason that I have written the first ever Bollywood style Uttarakhandi feature film। बस आखिरी विनती फिर से मैं करना चाहता हूं कि प्लीज इस फिल्म को सक्सेस करवा दीजिए, प्लीज सक्सेस करवा दीजिए, ताकि हमारे पास कॉल आए, मैं पैसा कमा सकूं, ताकि मैं सिर्फ इसको उत्तराखंड में नहीं, मैं इस देश के हर कोने में जहां पे पहाड़ी लोग हैं सर, मैं वहां पे ये रिलीज करवा पाऊं, मैं इंटरनेशनली इस फिल्म को रिलीज करवा पाऊं, and I should get funds to make it possible, and that is in your hands, every one of you. Trust me, मैं उत्तराखंडी तो नहीं हूं, लेकिन इस फिल्म में मुझे दिल से एक पहाड़ी बना दिया, and these are not just words I'm telling you. I have lived this film, and the promises that I make not only to the crew members or the artist of Mati Pehchan, but to a little boy when the shoot was going on sir, कि सर ये बताइएगा सिनेमा में लगेगी ना, that kind of language sir, sorry, लगेगी, हाँ लगेगी, पिक्चर हॉल में हम देखेंगे इसको, हाँ देखेंगे। ऑप्शंस थे, फिर भी मैंने कहा नहीं, वो उस बच्चे से किया हुआ खोटा बात का वादा सर, वो मैं पूरा कर रहा हूं। मैं पहाड़ी हूं, इसलिए मैं अपने आप को पहाड़ी हूं। I would request सर सतपाल महाराज जी, मैं आपके हाथों से चाहता हूं कि इस फिल्म का आगाज हो, आप इस ट्रेलर को रिलीज करें।
તે ગંભીર સમસ્યા છે. એ જે તાર જા છતો છોડ દો. આપણ મજબૂરી યા આપણ બુસ્તીલી. એ શબ્દમાં કે નાચનું કે કચોરી. સમજ ગઈ તું પાસ એડિશન પાસ ઇજ્જત ચીલી ફર્સ્ટ ચેનल. मैं क्या नहीं जाने और मैं इस बाजू को छोड़ गया. देखो तुम्हारा आई ना डुब के रख पर हाथ धरे रमला. ले मैं मना कर दूं. मगर यार पागल हो तुम यार लव जीवन में ध्यान नहीं कर रहे तुम. यो बाबा तुझे कष्ट है. हमारी संस्कृति के लिए बड़ा आवश्यक है कि हमारी रीजनल फिल्म्स जो हैं ये पर्दे पे आएँ. हमारी लोक भाषा जो है, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी मातृभाषाएं हैं, ये आगे बढ़ें. फराज जी ने बताया कि जब ये गए तो म्यूज़िक बड़ा पसंद किया गया, पर उसको कहा कि साहब ये आपका रीजनल लैंग्वेज है, इसको मान्यता नहीं मिली है, उसको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं. तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की जो भी कठिनाई होगी आप हमसे संपर्क करें, उस कठिनाई को दूर करने का हम लोग प्रयास करें. और मैं कामना करता हूं कि इसका प्रचार करेंगे. वर्ड ऑफ माउथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसका प्रचार प्रसार करेंगे. हम भी पूरी मदद करेंगे ताकि फिल्म देखी जाए और इनको लाभ मिले, क्योंकि घाटे का सौदा कोई नहीं करना चाहता. इफ दे अर्न मनी डेफिनेटली और भी फिल्में बनेंगी और हम प्रमोट करेंगे. और हमने अपनी फिल्म पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को रखा है कि जो फिल्म पूरी तरीके से उत्तराखंड में बनाई जाएगी पूरी मदद मिलेगी. देखिए, उत्तराखंड में दो किस्म के उत्तराखंडी होते हैं. एक तो जन्म से उत्तराखंडी और दूसरा कर्म से उत्तराखंडी. तो आप कर्म से उत्तराखंडी हैं और आपकी फिल्म जितनी मैंने देखी टेक्निकली बहुत साउंड लगी और मैं तो कुमाऊं में पढ़ा भी हूँ तो काफ़ी रूट से जुड़ी भी लग रही है. मेरे पास 25,000 स्टूडेंट्स हैं. ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी एजुकेशन ग्रुप है. तो जब भी आपकी फिल्म आएगी तो मैं चाहूँगा पहले 3 दिनों में कुछ 100 ग्राफिक करा के लोग जो है खरीद के यहाँ के बच्चे वहाँ जाए और देखें, तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे. मैं आपकी जितना भी है मैम फोन आ रहा आपका. जो फिल्म से जुड़े हुए जितने भी लोग यहाँ पे हैं कलाकार हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आज इस खुशी के मौके पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ. ये एक 9 साल पहले जो सपना देखा है वो सपना शायद साकार होता नज़र आता है तो शायद इमोशंस आ जाते हैं. खैर, नमस्कार. इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. इस फिल्म को आज आपके समर्थन और आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है. इस फिल्म से जुड़े हर इंसान की यही दिली इच्छा है कि वो उत्तराखंड में एक अच्छे स्तर के सिनेमा की शुरुआत कर सकते. मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस फिल्म को जरूर देखने जाएं, ताकि कल फराज शेर जी जैसे कई और अन्य हमारे उत्तराखंड के लोग इस काम को बढ़ाने में आगे आ सकें और हम क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के स्तर को और भी बेहतर रूप दे सकें. बस मैं इतना ही कहूँगा और ज़्यादा समय न लेते हुए क्या गढ़वाली हर कोई नहीं समझ पाता, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन ये हमारे साथ करण गोस्वामी जी हैं, अंकिता परिहार जी हैं. जब ये डिसीजन हमारे डायरेक्टर सर ने लिया कि हमें इस भाषा के अंदर फिल्म बनानी है, तो बहुत जगह पे हमारे करण साहब जो हैं वो भी डायलॉग में फंसने लगे, क्योंकि ये हिंदी बोलते और उन्हें अपनी लैंग्वेज जो है वो ठीक से नहीं बोल पा रहे थे. तो उस समय हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो हमारे लीड एक्टर्स हैं उनकी ज़बान जो होनी चाहिए. सो उसमें हमारा सहयोग किया हमारे राजन बजेली जी ने, जिन्होंने संगीतबद्ध किया है इस फिल्म के सारे गानों को. और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हमारे जो एक्टर्स हैं, लीड एक्टर्स हैं, इनको ये मिली कि नहीं, हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहिए. देखिए, अंग्रेज़ी आप सीखिए, हिंदी आप सीखिए, आप वेरियस लैंग्वेजेस सीखिए, लेकिन हम अपने रूट्स की जो लैंग्वेज है या अपने रूट्स जो हमारे हैं उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए. सो आई थिंक वी वन द केस.
राजनेताओं की कथनी और करनी में कितना यकीन आपको वाबस्ता है, क्योंकि 22 साल का अरसा उत्तराखंड के लिए, बदलाव के लिए कम नहीं है। सर ये तो उन लोगों के कथनी और करनी का तो मुझे वो नहीं है, मेरा जो कर्म था वो मैंने किया है। सर एक उम्मीदें जताई हैं आपने सतपाल महाराज से, आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं जी। मेरा सवाल ये है, कितना यकीन आपको है इनको? जी देखिए, जिस सच्चाई से हमने इस फिल्म को या उत्तराखंड में अपने काम को लेकर हम लोग उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार भी हमें उतनी ही सच्चाई से सपोर्ट करे, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फराज भाई ने अपने लिए किया है, हम लोग उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात यहाँ रखना चाहूँगा, ये फिल्म मेरे लिए फिल्म नहीं है माटी पहचान, ये एक विचारधारा है हमारी कि अगर कल इस तरीके का काम उत्तराखंड में रेगुलर शुरू हुआ, कमर्शियल सिनेमा और एक अच्छे सिनेमा की शुरुआत रेगुलर होती है, तो हमारी कई नौजवान पीढ़ियां जो अभी मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, काफ़ी मैं दिल्ली और मुंबई काम करता हूं तो मैं देखता हूं, तो जो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड के लिए, तो अगर वो काम उनको अपने ही उत्तराखंड के अंदर मिले तो वो पलायन क्यों, उसी पलायन को रोकने के लिए इस तरीके का स्टेप हमने सोचा कि अगर हम ऐसे उठाएंगे तो शायद हम ऐसा एक इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी कर सके, फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें सरकार का हमें सपोर्ट मिलेगा, तो वो पलायन हम रोक सकते हैं। पलायन की आवाज़ उठाने वाले खुद पलायन कर रहे हैं, तो रुकेगा कैसे? जी देखिए, मेरे ख्याल से मेरी जो जन्मभूमि है वो लखनऊ है, मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई, मैंने अपनी तालीम हासिल की 10वीं तक की लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में। उसके बाद मैंने एक तरह का पलायन किया, और वो पलायन पढ़ाई के लिए था। सर माइग्रेशन जाने या माइग्रेट दो तरीके का होता है, मजबूरी में होता है, एक इंटरेस्ट के। राइट, I'm just coming to your point. So my point is कि एजुकेशन करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे, either I go back to Lucknow or I move to Delhi, and I chose the latter one कि हमें दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज जो है, या मुझे मीडिया पर्सन बनना है, या मुझे न्यूज़ में जाना है, मुझे खबरें पढ़नी है, ये चीज़ हमें लखनऊ में नहीं मिलेगी। लखनऊ में सिर्फ लखनऊ दूरदर्शन था वहाँ पे। Then I had an opportunity. The point is कि मैं मूव हो गया, और आज 23 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए। आज के डेट में मैं ये सोचता हूँ कि वो सारी चीज़ें अगर लखनऊ में होती तो शायद मैं पलायन नहीं करता। लेकिन फिर भी जब हम पहाड़ की बात करते हैं, आपने ये कहा था कथनी और करनी में, सो माई ओनली पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट टू यू इज कि सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इशू रेस कर सकते, हम फिल्म मेकर्स हैं, हम इशू को रेस कर सकते हैं, हम एक स्टेचर की फिल्म बना सकते हैं जो हमने बना के दिखाई है। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे सपोर्ट यहाँ के लोगों से नहीं मिलता है, ये यहाँ के मंत्रीगण से नहीं मिलता है, तो शायद मैं दोबारा पहाड़ की तरफ नहीं आऊँगा, प्रैक्टिकली मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। नाउ द ओनली पॉइंट इज आई हैव रिक्वेस्टेड, ऐसे सर ने बोला कि अगर ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि हाँ, जो इश्यूज उठ रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। सर एक तरफ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के काफी हल्ला बोल है, वहाँ पर युवाओं को, जो युवा उत्तराखंड से अपना खतरा महसूस कर रहे हैं, तो इस बारे में आप इन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से प्रमोट करेंगे? आई थिंक उत्तराखंड के अंदर जो बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट आई हैव कंसीव्ड एंड व्हाट आई हैव सीन इज यू नो द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और क्योंकि ये हिली स्टेट है, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमने शूट किया है, हम जानते हैं किस कठिनाई से पहाड़ में लोग रहते हैं, किस तरह से वो एजुकेशन हासिल करते हैं, किस तरह से वो अपना घर चलाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है, और वो कैसे सॉल्व होगा ये तो मैं आपको पर्सनली अगर पूछे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन डेफिनेटली इसी प्रदेश के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं जो कि यहाँ का युवा रुकेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अंकिता परिहार जी जो है ये अपने बारे में बताएं, क्योंकि इन्होंने ये प्रूफ किया है
कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है, और ये आज के डेट में एक डांसर है और ये यहाँ पे क्रिएट कर रही है। इन्होंने ये तय कर लिया है कि मैं उत्तराखंड छोड़ के नहीं जाऊंगी, विच इज अ बिग डिसीजन। शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी कैन गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हेन शी गोज टू मुंबई और दिल्ली, बट शी सेड नो, आई विल नॉट गो आउट and I'll stay in Uttarakhand and I'll try to create the opportunity. And trust me, when you see the film, जब आप पिक्चर भी देखेंगे तो उसमें जो भूमिका इन्होंने माधुरी की निभाई है वो एग्जैक्टली यही है। मेरी पर्सनालिटी और पहाड़ के सभी बच्चों की पर्सनालिटी ऐसी है कि हम बहुत एक्सेप्टिव हैं, मायूसी है, दिक्कतें हैं, लेकिन हम कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते। हम स्ट्रगल करते आए हैं और करते रहेंगे। आगे बढ़ने का वो जो जज्बा है हमारे खून में है और हम उसे कभी रुकने नहीं देंगे और कोई रोक भी नहीं सकता। हमें बढ़ना है और हम बढ़ेंगे। हम अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं हैं, बट वी आर ट्राइंग एज यंग जनरेशन। हम अपॉर्चुनिटीज अब क्रिएट करेंगे। आई डोंट नो कितने लोग हेल्प करेंगे। मैं अपने बारे में बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगी। मैं बेसिकली एक डांसर हूँ। बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे डांस सिखाया है और इसके लिए जब मुझे यहाँ पे अच्छे गुरु, मतलब उस लेवल पे जब मैं सीख ली, जब गुरु नहीं मिले तो मुझे दिल्ली और बैंगलोर जाना पड़ा। मैंने अपना बहुत समय दिल्ली और बैंगलोर बिताया। फिर मेरे को जचा नहीं वहाँ पर रहना। मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों इतना समय यहाँ के लिए काम कर रही हूँ, जबकि मेरे दिल में हमेशा ये था कि मुझे पहाड़ के लिए ही काम करना है। एंड देन एट अ मोमेंट मैं सब कुछ छोड़ के वापस आई। मैंने डिसाइड किया, मैं पहले भी यहाँ पे एक डांस स्कूल चलाती थी, मैंने बहुत बच्चों को डांस सिखाया। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं पहाड़ के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चों को, मतलब अगेन मुझे सरकार से इसके लिए मदद मांगनी पड़ेगी और मैं मांगूंगी, किसी भी स्तर पे जाना पड़ेगा जाऊंगी, लेकिन पहाड़ के वो रिमोट एरियाज़ के बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनको वहाँ अगर ऐसी अंकिता हैं जिनको डांस सीखना है और वो कुछ नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए पूरी कोशिश करूँगी और उनको आगे बढ़ाने का रास्ता ज़रूर बता सकती हूँ। बनी है, ओमावनी भाषा में बनी है, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। मैं सभी जो बनाने वाले निर्माता हैं और सभी एक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा अभिनव प्रयास उन्होंने किया है और हमारी सरकार ऐसे प्रयासों को आगे प्रोत्साहित करती है। आपकी कोशिश भी लगातार यही है कि नहीं, फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और ये बिल्कुल बॉलीवुड स्तर की फिल्म है और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को देखनी चाहिए। मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें और इनको जरा थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, जिससे कि और भी फिल्में हमारी बने, लैंग्वेज में बने। थोड़ी इनको म्यूज़िक में दिक्कतें रही, कुछ लोगों ने प्रमोट करने से मना किया क्योंकि सब आपकी रीजनल लैंग्वेज है, और हम चाहते हैं कि हमारी रीजनल लैंग्वेज, हमारी जो बोली भाषाएँ हैं, ये सब जो है प्रोत्साहित हो, आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। सर सरकार की तरफ से इसे टैक्स फ्री करनी, इसके प्रयास किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे, जब इसको लोकार्पण करेंगे तो निश्चित रूप में हम टैक्स फ्री करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पलायन का मुद्दा है और एक महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। तो दो मुद्दों पर ये फिल्म जो है इसके बारे में विचार किया जा सकता है। सर 20 साल इस बात के गवाह हैं कि कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, क्या कहेंगे? हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, यही होता है। ये बात आप मुझे लिख के देंगे।